Good morning, student. My name is Nitikisha Kadu from your computer department. This is the second lecture of our client-side scripting language. Okay. Now, in our previous lecture, we started our first unit, that is basics of JavaScript programming. Okay. And in that lecture, we learn the features of our JavaScript. Now, there are various features of JavaScript. That is there are various features of JavaScript, that is browser support, structured programming, then dynamic typing, runtime evolution. Okay, so these are the some features of JavaScript. Then we learn how to write JavaScript document and how to run our JavaScript document. Okay, then we learn about the different the terms like object name, property, method, dot syntax, main event. Okay, now today we are going to learn what about the if statement, switch case statement, loop statement, break statement, continuous statement, and querying and handling properties. Okay, so these all the topics we are going to cover today. Okay, now first we'll start with if statement. Now what is if statement? As the selection statement, we use various type of if statement. If statement कब यूज होता है? It is used as a selection statement. For example, आपके पास दो कंडीशन है, ओके, दोनों में से आप लोग को चूज करना है, then you can use this if statement. For example, there are three types of if statement. एक तो if statement है, then if else statement है, then if else if statement. Okay, so these are the three types of if statement. Okay, if statement कब यूज होता है? when you want to choice something और selection करना है, then you can use this if statement. Now first we'll start with if statement. Okay, if statement का syntax क्या है? First you have to write down if, then in bracket you have to write down the condition, then after that you have to write down the statement if the condition is true. ओके, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रहेगी, वेदर आपकी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी. तो आप लोग को नीचे स्टेटमेंट कौन सा लिखना है? जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी वो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने लिखा है कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी. ओके, यहाँ पे पहले हम लिखने के लिखा इफ़ और हमारी कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी. जब हमारी कंडीशन ट्रू हुई कि ए ग्रेटर देन बी, तो हम लोग को क्या स्टेटमेंट प्रिंट करना है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज लार्जर नंबर. ए ग्रेटर देन बी का मीनिंग यही हुआ ना कि ए लार्जर नंबर है बी से. सो ये हमारा इफ स्टेटमेंट के उसका सिंटेक्स क्या है? इफ कंडीशन, देन यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट. देन हमारा नेक्स्ट है if else statement. Now what is the syntax of if else statement? If, first you have to write down if, then in bracket you have to write down the condition, then first statement if the condition is true, and दूसरा है statement if the condition is false. देखो यहाँ पे हम लोग ने if statement में क्या कर किया कि a ग्रेटर देन b है कि नहीं, तो हम लोग ने वहाँ पे कंडीशन लिखी थी a ग्रेटर देन b, तो स्टेटमेंट लिखा कि a इज ग्रेटर देन ए इज लार्जेस्ट नंबर. ओके, सेम कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि इफ ए ग्रेटर देन बी, तो नीचे पहले स्टेटमेंट आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए इज लार्जर नंबर एल्स. फिर से आप लोग को दूसरा भी स्टेटमेंट आएगा ना, तो वहाँ पे आप लोग को लिखना है एल्स. एल्स में क्या आएगा? फॉल्स कंडीशन, तो उसमें लेके आप लोग को स्टेटमेंट लिखना है कि बे इज लार्जेस्ट नंबर. ओके, सो ये रहा हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट. जब दो कंडीशन को चेक करना है तो सिलेक्शन करना है, देन यू कैन यूज दिस एल्स इफ स्टेटमेंट. देन हमारा नेक्स्ट है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. ओके, इसमें क्या रहेगा? पहले इफ स्टेटमेंट में क्या था? एक कंडीशन थी, एक स्टेटमेंट था. एल्स इफ में क्या थी? कंडीशन एक ही थी पर दो स्टेटमेंट. देखो यहाँ पे एल्स इफ एल्स में क्या है कि यू हैव द मल्टीपल कंडीशन. मल्टीपल कंडीशन आप लोग को चेक करनी है, देन यू कैन यूज दिस इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कब यूज होता है? व्हेन यू वांट टू चेक द मल्टीपल कंडीशन. देखो यहाँ पे उसका सिंटेक्स क्या है? इफ कंडीशन, तो फिर वहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप लोग को स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखना है, अदरवाइज चेक करो दूसरी कंडीशन. ओके, सिमिलरली वो क्या करेगा? सब एक के बाद एक कंडीशन चेक करेगा. कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई
तो लास्ट में एल्स वाला स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग ने कंडीशन चेक की ए ग्रेटर देन बी, वो फॉल्स हो गया तो नीचे के स्टेटमेंट पे आया बी इज ग्रेटर देन ए, फिर नीचे मतलब एक के बाद एक कंडीशन चेक करते जाएगा, सब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लास्ट का जो स्टेटमेंट है एल्स में वो डायरेक्टली वो प्रिंट करेगा। ओके, सो ये थे हमारे इफ स्टेटमेंट that is used for making the selection. Okay, three types of if statement hai. There is if statement, else if, then if else if. Okay, then our next topic, that is switch case statement. Now what is the use of this switch case statement? Switch case statement is basically to execute the desired choice. मतलब if there is a multiple choice is there, then you can use this switch case statement. The syntax of this control structure is similar to the C or C++. इसका भी जो कंट्रोल स्टेटमेंट है that is a similar. For example syntax क्या है उसका, फर्स्ट आएगा आपका switch, then choice. If there is a multiple choice then you can use this switch ना, so first you have to switch, then वहाँ पे आप लोग को choice लिखनी है. Okay, then case identifier, then statement, मतलब ट्रू आ तो स्टेटमेंट और वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज यू हैव टू एग्जीक्यूट द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट. ओके, ये हमारा स्विच केस दैट इज यूज टू यूज व्हेन देयर इज अ मल्टीपल चॉइस इज अवेलेबल. ओके, इट इज सिमिलर टू दवर C एंड C++. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल स्टेटमेंट. No, sorry, loop statement. Now what is the use of this loop? Loop is used when there is a iterative logic is there in your program, then you can use this loop statement. There are mainly three type of loop statement, that is while loop, do while loop and for loop. There are the main three loops available in our JavaScript. Okay, now we will start with while loop. Now what is while loop? While loop statement help us in implementing the iterative logic of the program. Now what is iterative logic? Iterative logic means repetition of code. मतलब फॉर एग्जांपल आपका जो कोड जो है वो रिपीट हो रहा है. ओके, तो वो आपको कम करना है, देन वी कैन यूज दिस while statement. It is used to help us in implementing the iterative logic. मतलब जो रिपीटेशन ऑफ कोड है उसको इटरेटिव जो स्टेटमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए while loop यूज़ होता है. उसका सिंटेक्स क्या है, पहले आएगा आपका जो इनिशियल कंडीशन है वो, देन वाइल, देन टर्मिनेटिव कंडीशन जो भी क्लोजिंग कंडीशन है वो, देन सम स्टेटमेंट एंड स्टेपिंग कंडीशन. ओके, ये है हमारा सिंटेक्स ऑफ अवर वाइल लूप. देन नेक्स्ट है हमारा डू वाइल लूप. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डू वाइल लूप? Do while loop is similar to the while loop. The only difference is that the do while execute at least once. डिफरेंस क्या है कि जो do while loop है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है. इसमें क्या आता है, पहले while loop में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक करता है. देखो यहाँ पे while, यहाँ पे क्या है फर्स्ट कंडीशन है. ओके, फिर do while loop में क्या होता है, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है फिर कंडीशन चेक करता है. सो जो ये do while loop है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने एक स्टेटमेंट लिखा, पहले लिखो डू, फिर आपको स्टेटमेंट आएगा, फिर लास्ट में आपका कंडीशन आएगा, तो एक बार आपका ये डू वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है. देन नेक्स्ट है हमारा फोर लूप. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फोर लूप? दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. ये जो फोर लूप है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है. ओके, नाउ व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ दिस फोर लूप? First you have to write down for, then initial condition, then terminating condition and stepping condition. ओके, देखो पहले आएगा आपका फोर लूप. इनिशियल कंडीशन मतलब आपको पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1. देन टर्मिनेटिंग कंडीशन मतलब ये हमारा जो लूप है उसको कब टर्मिनेट करना है. फॉर एग्जांपल i लेस देन इक्वल टू 10, मतलब जो i जब तक i की वैल्यू 10 से कम होगी और 10 होगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा. एंड लास्ट में आप लोग क्या करना है, स्टेपिंग कंडीशन मतलब i की जो वैल्यू है उसको
इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है वो आप लोग को वहाँ पे इंडिकेट करना है। ओके, सो देखो यहाँ पे ए फोर लूप आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द इनिशियल कंडीशन, देन आप लोग को टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखनी है कि कहाँ पे हमारा जो लूप है वो स्टॉप होगा। देन आपको लिखनी है स्टेपिंग कंडीशन, मतलब जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करानी है या डिक्रीमेंट करानी है। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर ब्रेक स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट? Similar to the C or C++, the break statement is used to break the loop. ब्रेक स्टेटमेंट किसके लिए होता है? टू ब्रेक आवर लूप। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को लूप को ब्रेक नहीं करवाएंगे तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट टाइप इनफाइनाइट टाइम वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, पर ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, वो जो हमारे लूप है उसको ब्रेक करेगा और टर्मिनेट करेगा। नाउ इट इज़ द गिवन बाय द कीवर्ड ब्रेक। वो कैसे ब्रेक होगा, इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? ब्रेक। ओके, नाउ देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, आई इफ आई इज इक्वल टू 5 देन ब्रेक। मतलब ये जो पहले है हमारा फोर लूप वो 1 से स्टार्ट होगा, आई इज इक्वल टू 1 से, और आई इज इक्वल टू 10 तक वो एग्जीक्यूट होगा। पर मैंने बीच में एक कंडीशन यहाँ पे रखी है कि आई इज इक्वल टू 5 देन ब्रेक। तो जब वो आई की वैल्यू 5 होगी तो हमारा ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द यूज़ ऑफ दिस ब्रेक? ब्रेक का यूज़ क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ है टू ब्रेक द लूप को आपको स्टॉप करवाना है, देन यू कैन यूज़ दिस ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट? द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज इन अ लूप इन ऑर्डर टू कंटिन्यू स्कीप, कंटिन्यू और स्किप करने के लिए। द कीवर्ड कंटिन्यू इज यूज टू मेक द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इन द लूप। नाउ कौन सा कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? इट इज यूज द स्टेटमेंट और कीवर्ड दैट इज कंटिन्यू। ओके, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट? किसके लिए यूज होता है? in order to continue the loop। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। इफ आई इज इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू आई देन कंटिन्यू। तो ये क्या है, इसका एक एग्जाम्पल लिया है कि जब आई की वैल्यू 5 होगी और तब क्या करना है आपको, फिर से एक्स को आई को असाइन करना है और प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है। ओके, सो ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है दैट इज यूज इन अ लूप इन ऑर्डर टू कंटिन्यू। ओके, जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो लूप को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रेक दैट इज यूज टू break the loop, while this continuous statement that is used in order to continue the loop. Now next है हमारा querying and handling property. Now what is the use of this property? Now one of the important feature of JavaScript is its interactivity with the user. Interactivity with the user. JavaScript की मेन फीचर क्या है कि वो यूज़र के साथ इंटरेक्ट करता है। ओके, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉपअप बॉक्स यूज इन अ जावास्क्रिप्ट बाय विच यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द ब्राउज़र ना। जावास्क्रिप्ट का मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या हुआ, उसकी इंटरेक्टिविटी। ओके, तो हाउ इट कैन इंटरेक्ट विद द यूज़र, तो यूज़र को इंटरेक्ट करना है और देन इट प्रोवाइड 3 पॉपअप बॉक्स, वो 3 पॉपअप बॉक्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन से 3 पॉपअप बॉक्स है? फर्स्ट वन है अलर्ट बॉक्स, देन सेकेंड है हमारा कन्फर्म बॉक्स एंड थर्ड है हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स। दिस आर द 3 पॉपअप बॉक्स दैट प्रोवाइड बाय द जावास्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद द ब्राउजर। ओके, देखो यहाँ पे दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ पॉपअप बॉक्स। फर्स्ट है देखो अलर्ट बॉक्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अलर्ट बॉक्स। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस अलर्ट बॉक्स? In this type of pop-up box, some message will be displayed.
मतलब कोई भी अलर्ट मैसेज आप लोग को डिस्प्ले करना है, देन यू कैन यूज दिस अलर्ट बॉक्स. इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द मैसेज ओनली. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा कन्फर्म बॉक्स. नाउ इन दिस टाइप ऑफ पॉपअप box in which the message about the confirmation will be displayed, and hence it should have two buttons, OK and cancel. Now confirm box का क्या यूज़ है, वो confirmation मैसेज डिस्प्ले करता है. ओके. तो उसके लिए पास उसके लिए एक तो उसमें मैसेज रहेगा जो कन्फर्मेशन के लिए पूछेगा आपको, तो एक मैसेज रहेगा. तो ये जो बॉक्स है उसमें तो पहले मैसेज रहेगा और दूसरे उसमें दो बटन्स रहेंगे, ओके एंड कैंसिल. ओके. इफ़ आप लोग को कन्फर्मेशन करना है देन यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन. फिर आपको कैंसिल करना है देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस कैंसिल बटन. ओके. सो दिस अलर्ट बॉक्स हैज ओनली द मैसेज and only one button, that is OK, while this confirmation box they have the message and the two button, that is OK and cancel. The next one है हमारा prompt box. Now what is prompt box? Prompt box, it is a type of pop-up box which display the text window in which the user can enter something. Hence it is has a two button, that is OK and cancel. देखो ये जो prompt box है वो क्या रहेगा, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स रहेगा और टेक्स्ट विंडो रहेगा जिसमें आप लोग कुछ भी टाइप करना है तो कर सकते हो. ओके. तो और उसके साथ दो बटन्स रहेंगे, एक तो ओके एंड कैंसल. ओके. देखो यहाँ पे आप लोग को ये 3 पॉपअप बॉक्स दिख रहे हैं. पहला आपका है वो है अलर्ट, फॉर गिविंग द अलर्ट ओनली द इट डिस्प्ले ओनली द मैसेज. दूसरा है कन्फर्मेशन, दैट हैज 2 बटन, दैट इज ओके एंड कैंसल. एंड that is third one is prompt box which has also the 2 button, that is OK and cancel. Okay. And it has also the text window that is used by the user to enter the text. So ये रहा हमारे 3 types of pop-up boxes that is available in the JavaScript to interact with the user. Okay. Now we'll see this simple program to read an integer and display the whether it is a prime number or not. आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक तो पहले यूज़र से इनपुट लेना है और वो चेक करना है वेदर इट इज़ प्राइम नंबर और नॉट. ओके. तो पहले देखो आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द HTML टैग, देन उसमें हेड आएगा एंड गिव द टाइटल, दैट इज प्राइम नंबर डेमो. देन इन योर बॉडी टैग यू हैव टू राइट डाउन द स्क्रिप्ट, देन टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड जावास्क्रिप्ट. ये कौन सा जावास्क्रिप्ट है, सो यू हैव टू टाइप में आप लोग को क्या लिखते हैं, टेक्स्ट एंड जावास्क्रिप्ट. ओके. देन टेक वन वेरिएबल, आपको एक वेरिएबल लेना है, वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, देन टाइप नंबर हियर. देखो यहाँ पे हम लोग ने 3 टाइप्स ऑफ पॉपअप बॉक्स देखे. ओके. उसमें से आप लोग को यहाँ पे कौन सा लेना है, प्रॉम्प्ट लेना है. प्रॉम्प्ट में क्या रहता है, 2 बटन्स रहते हैं और एक टेक्स्ट विंडो रहता है जिसमें आप लोग कुछ भी टाइप करना है यूज़र से तो ले सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग ने लिया वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, टाइप नंबर हियर. देन एक दूसरा वेरिएबल ले दिया बी, देन वेरिएबल फ्लैग इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे आप लोग ने एक कंडीशन चेक करनी है, सो यू हैव टू यूज़ योर फोर लूप. अभी हम लोग ने पढ़ा ना हमारा फोर लूप, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है. फोर लूप में पहले क्या आएगा, फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन 4, देन फर्स्ट इनिशियल कंडीशन, सो आई इज इक्वल टू 2, देन आई लेस देन नंबर एंड आई प्लस प्लस. ओके. सेकेंड जो है हमारा टर्मिनेटिंग कंडीशन और लास्ट में है हमारा स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट स्टेटमेंट. ओके. फिर हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है वेदर द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट. प्राइम नंबर है कि नहीं उसका आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम उसका मोड निकालेंगे. तो बी इज इक्वल टू नंबर मोड आई. ओके. तो यहाँ पे देखो कि बी 0 आया, बी 0 आया तो हम लोग को क्या करना है, फ्लैग रिटर्न करना है, फ्लैग इज इक्वल टू 0 करना है और ब्रेक करना है. ब्रेक का हम लोग ने क्या यूज़ देखा है, ब्रेक स्टेटमेंट, दैट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप. और देन लास्ट में चेक करेंगे कि इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 0 देन हम लोग को क्या लेना है, एक अलर्ट लेना है. अलर्ट को किसके लिए यूज होना है, फॉर डिस्प्लेइंग द मैसेज. तो अलर्ट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर और
नंबर फ्लैग इज इक्वल टू 0 नहीं आया तो हम लोग को डिस्प्ले करना है कि प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर. ओके, सो ये रहा हमारा जावास्क्रिप्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट. तो इसमें हम लोग ने जो भी आज पढ़ा वो सारे कॉन्सेप्ट आ गए. फॉर एग्जाम्पल आपका फोर लूप है, देन जो प्रॉम्प्ट बॉक्स है, अलर्ट बॉक्स है, देन नेक्स्ट है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है. ओके, सो यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट जावास्क्रिप्ट to find whether the number is prime number or not. Now let's take the another example, that is write a JavaScript program which accept n as an input and print first n odd number. Okay, देखो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि पहले तो आप लोग को एक नंबर लेना है. ओके, फिर उस ऑड नंबर को आप लोग को प्रिंट करना है. तो फर्स्ट यू हैव टू फर्स्ट राइट डाउन हेड HTML टैग, फिर उसमें लिखो हेड. फिर आप लोग को स्क्रिप्ट क्या लिखनी है, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट. फिर यू हैव टू यूज वन फंक्शन देन फंक्शन str, देन वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू नंबर str. देन यहाँ पे तीन वेरिएबल लिए हैं, दैट इज I, J, K एंड काउंट. फिर यू हैव टू यूज वन स्टेटमेंट, दैट इज राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट द ऑड नंबर आर. उसमें आप लोग को यूज़र से नंबर एंटर करवाना है. सो हियर यू हैव टू यूज फॉर लूप बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट द n इनपुट. ओके, n इनपुट आप लोग को एक्सेप्ट करवाना है. सो यू हैव टू यूज द फॉर लूप. सो I is equal to 0, I less than or equal to number and I plus plus. Now here you have to check the condition that if I model 2 not equal to 0 रहेगा तो भी वो ऑड नंबर रहेगा, नहीं तो वो इवन नंबर रहेगा ना. दैट्स व्हाई यू हैव टू चेक द कंडीशन I model 2 is not equal to 0, then you have to take the number. Okay, so here you have to close the script. Then in body part you have to write down script type is equal to text javascript. फिर यहाँ पर आपको वेरिएबल लेना है इनपुट str. द प्रॉम्प्ट किसके लिए यूज होता है, फॉर टेकिंग द नंबर फ्रॉम द यूजर. सो एंटर सम नंबर that will take the number from the user. Then we have to use this function to identify whether this number is odd or not. Okay, so here you can see this is the output, this is our prompt message, that is enter some number. Then after taking the number it arranges the number. Okay, the odd numbers are. So in this way you can write down the script, JavaScript to read the n number and print the first add odd numbers. Okay, so in this lecture what we learn about our if statement, then loop statement, then what is switch case statement, then break, continue. Okay, so I hope you all understand today's topic. Thank you.